Congratulations for making it to civil services. Thank you. Would you introduce us about yourself and your educational background? I am Sanskar Tripathi. I'm basically from Rewa, Madhya Pradesh. I did my graduation from Delhi University, followed by a master's in geography. And currently, I'm working as Deputy Education Officer in Uttarakhand. How was your evening? It was very fine. I enjoyed the atmosphere there, and it was a very learning experience there. What sort of questions were being asked by the board? They are more of a discussion-based questions. They are not factual questions. They are, even since my hobby was sketching, so they told me to sketch. So it was an interesting experience. The questions were related to mostly my background in geography, and then some questions were related to IR. So they were a dynamic question. So, would you talk about some of the questions from the IR? Okay. So they asked me regarding CIS countries, Commonwealth of Independent States. They asked me regarding SAARC countries and the recent ASEAN, the BRICS, and all these geo-groupings that are being formed. And they were also interested in Arctic nations and the recent Arctic global climate change phenomena. So they were these dynamic questions that were there. What was the question on the climate change? Climate change question was since Arctic is melting, so what are the positive and negative aspects that are visible out of that? What was your optional subject? So my optional and my graduation subject both are geography, so that is why they were more keen on that. What was your mode of preparation for this exam? Did you go for coaching, self-study, or mentorship program? I prepared in my home itself, and for this interview I did a few mocks, so that were helpful. And I also gave a few mock for my mains as well. So those are the helps that I have taken. What was your strategy for prelims, especially given the unpredictable nature of CSAT and maths? I have always been very comfortable with prelims. This was my fourth prelims and fourth mains, so I have never been out with prelims. So I am very comfortable with both CSAT as well as GS1. So how did you prepare for CSAT? I was always good in quizzing, so that was an added advantage. Secondly, I prepared for the factual aspects of it, and I always cover the current affairs with monthly magazines, so that helps with me with that. And I have made notes for every subject, so that also helps it. And what was your strategy for the mains, given the fact that it's a 5 days back-to-back examination? So I have developed the main strategy over the period of 4 years since my UPSC journey. So initially it was more of a factual, but now I have added analytical aspects to it. So I have made my questions my answers more dynamic. So because of these mocks, they have helped me a lot. And gradually, even in my optional, they have helped me. So that has given me an advantage. How do you do the value addition? Okay, so value addition can be done by suggesting some measures. If the question is asking regarding some issues, so you have to give them some solutions of that. Or if that question is more general in nature, so you have to give more current affairs linkages with that answer. So it gives certain extra marks to that question. Given the time consumption that this exam takes, how do you keep yourself physically and emotionally? My family was a big support to me. My brother has came here as well. So my parents and everyone, they were supporting me. My friends were there. And even my colleagues in my training in Dehradun, they have helped me. So that has been a solid stone for me. What's your take on UPSC and mental health? Having a good mental health is the biggest advantage that you can have in a UPSC preparation, because the exam is such a lengthy process. It takes more than a year to prepare and get everything done, and there are ups and downs. Only 900 and 1,000 people, they get selected, so there will be failures, there will be successes, so you have to balance them. You don't have to be overjoyed with success and don't have to be more depressed because of failures, so you have to balance them. अगर आप हमें अपनी यात्रा के बारे में बोलेंगे कि आपने कब अपनी यूपीएससी की यात्रा शुरू की और अभी आप यहाँ पे तो हाउ वाज द जर्नी? मेरी यूपीएससी जर्नी काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई. मेरे पेरेंट्स सिविल सर्वेंट रहे हैं, तो मैं हमेशा से उसी की तरफ इंक्लाइन रहा हूँ. तो उसके बाद फिर जब मैंने ग्रेजुएशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ एक ऐसा एटमॉस्फेयर था कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर पाया यूपीएससी के लिए. फिर मेरे
अटैम्प्ट्स चालू हुए, फिर जब मेरे इनिशियली सक्सेस नहीं मिली तो फिर मैंने स्टेट पीसीएस की तरफ रुख किया, उसमें मुझे सक्सेस मिली। फिर उसके प्रिपरेशन के दौरान मेरे आंसर्स में थोड़ी मैच्योरिटी आ गई और मेरे खुद के अंदर भी एक मैच्योरिटी आ गई। सो उसके कारण काफ़ी एडवांटेज मिला। और अब फिर 2 साल के बाद मैं फिर वापस यूपीएससी में आया हूँ, तो इसमें मेरा पहला इंटरव्यू कॉल आया। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। प्रीवियस अटेम्प्ट्स में कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स आपने किए जो इस बार आपने ध्यान रख के उन पे काम करके इम्प्रोवाइजेशन दिखाई? वो जैसा आपने कहा, वो वैल्यू एडिशन मेरा एक वीक पॉइंट था, वो मैंने काफ़ी सही किया। फिर मेंस में सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है आपका ऑप्शनल, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा करना पड़ता है, तो उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की। GS4 में मैंने काफ़ी मेहनत की और उसके साथ साथ एस्से जो कि काफ़ी डायनामिक है, उसमें काफ़ी मैंने मेहनत की। ज्योग्राफी की बात करें, क्योंकि आपका ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसकी तैयारी आपने कैसे की? और प्रीलिम्स में जो ज्योग्राफी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं उनको आपने कैसे टैकल किया और कहाँ से आते हैं? तो प्रीलिम्स और मेंस की ज्योग्राफी में बहुत डिफरेंस है। प्रीलिम्स की ज्योग्राफी तो आप बेसिक एनसीईआरटी से कंप्लीट कर सकते हो, बट मेंस में जो ऑप्शनल में ज्योग्राफी आती है उसकी खासियत ये है कि उसमें क्वेश्चंस बहुत जनरल होते हैं। सो यू हैव टू मेक देम मोर ज्योग्राफिकली लिंक्ड। So you have to use theories, you have to use a number of example, current affairs, maps to make them more dynamic. So ये काफ़ी एक बड़ा रीज़न रहता है, काफ़ी बच्चे इसमें अच्छा नहीं कर पाते। सो और उसके ऊपर से काफ़ी ज़्यादा लोग लेते हैं, तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ता है अपने आंसर्स में। तो ये सारे डायनामिज़म और ये सब करके आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो ज्योग्राफी। न्यूज़पेपर्स का क्या रोल रहता है सिविल सर्विस की पूरी प्रिपरेशन में? और जब ज्योग्राफी की बात करें या करंट अफेयर्स की बात करें, तो न्यूज़पेपर्स कितना रोल प्ले करते हैं इस चीज़ को कवर करने में? तो ज्योग्राफी और या फिर किसी भी सब्जेक्ट में न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि न्यूज़पेपर काफ़ी सारी आपके आंसर्स को डायनामिक बना देते हैं। और न्यूज़पेपर और एडिटोरियल में आपका एक ओपिनियन बिल्डिंग का काम रहता है। फॉर एग्जांपल अभी डिलिमिटेशन का इशू चल रहा है, तो आपको सिर्फ उसमें ये नहीं जानना है कि उसमें क्या है, कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, बट आपका एक फर्म स्टैंड पॉइंट होना चाहिए कि क्यों ये सही है, क्या होना चाहिए और कैसे वो किया जा सकता है। तो ये सारे आंसर्स आपको एक न्यूज़पेपर की कंटिन्यूस रीडिंग से मिल सकते हैं, और उसके साथ साथ इसमें दोनों तरह के एस्पेक्ट मिल जाते हैं कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है, और उसका एक काउंटर व्यू एज वेल मिल जाता है। तो इसलिए यू हैव टू कंटिन्यूसली रीड दोस न्यूज़पेपर एज वेल। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, जो एस्पिरेंट्स तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम की और जो ज्योग्राफी एज एन ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो उनको तैयारी कहाँ से करनी चाहिए और एनसीईआरटीज़ कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? आप तो कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना चाहिए, और एनसीईआरटी के बाद आप फिर हायर बुक्स में जाते हो, क्योंकि ऑप्शनल है तो सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा। तो आप या तो आप किसी के नोट्स ले सकते हो अगर आपके पास टाइम की कमी है, बट अगर आपके पास टाइम है और आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो गो विद द स्टैंडर्ड बुक, सविंदर सिंह, माजिद हुसैन। तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपकी एक बेट्स डेवलप होगी। तो ये सब करके उसके साथ साथ आपको एनरिच करना पड़ेगा करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर से। सो ये सारे मिला के ही आपका आंसर कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरह करके आप इसमें कोचिंग्स की हेल्प ले सकते हो अगर आपके पास टाइम और बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था तो मैंने हेल्प नहीं ली। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं। आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था? आपने घर से तैयारी की थी या आप दिल्ली आके आपने तैयारी करना शुरू? मैंने हमेशा घर से ही तैयारी की, ऑल्दो मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली से था, बट मैंने कभी कोचिंग नहीं ली, क्योंकि कोचिंग में आपका काफ़ी टाइम चला जाता है, और मेरा क्योंकि बैकग्राउंड था तो मुझे इतनी ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई। तो उसके मैंने घर से ही प्रिपेयर किया, और वीडियोज़, यूट्यूब वीडियोज़, एंड देन अपने से आंसर्स लिखना, मॉक्स लिखना, ये सब करके काफ़ी हेल्प मिल गई मुझे। मॉक्स कितना हेल्प करते हैं इस पूरी प्रिपरेशन में, और कितने मॉक्स जनरली देने चाहिए ताकि आप इम्प्रोवाइज कर सकें? मॉक्स स्पेशली मेंस में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि मेंस में आप जैसे आंसर्स लिखते हो उसको कैसे डायनामिक करते हो, और सिर्फ मॉक्स लिखने से कुछ नहीं होता। जो आंसर्स, जो आउटपुट आता है, जो उनका रिव्यूज़ रहते हैं, उनको आपको यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली आस्क देम कि कैसे हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इस तरह करके आप काफ़ी आंसर्स में इनोवेशंस लाओ, और मोर ओवर आपको टाइम बाउंड करना पड़ता है। आप अगर एंडलेस टाइम में लिख रहे हो तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो, बट आपके पास टाइम 3 घंटे ही रहेगा। तो स्पेशली फिर GS4 हो गया या फिर ऑप्शनल हो गया, उसमें काफ़ी आपको टाइम लिमिट का ध्यान देना पड़ता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट मॉक्स हेल्प यू विद। सिंस इस एग्ज़ाम को तैयारी करने में कम से कम 2 साल या 2.5 साल लगे जाते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एग्ज़ाम है, तो क्या बैकअप प्लान होना चाहिए? और आपका बैकअप प्लान क्या था व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम? तो मेरा क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ था, तो मेरा कोई ऐसे स्पेसिफिक बैकअप मेरे पास कोई बनाया नहीं था जैसे लॉ वगैरह के पास होता है। तो मेरा एकेडमिक्स एक बैकग्राउंड था, मतलब एक बैकअप था कि मैं अगर इसमें नहीं जाता तो शायद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में जा सकता हूँ, बट वो मैंने उसको लास्ट ऑप्शन रखा था। मैंने उसके पहले अपना स्टेट PCS को मैंने देखा कि स्टेट PCS में अगर मैं सिविल सर्वेंट बन जाता हूँ तो भी मैं काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। तो उसको मैंने एज अ बैकअप लिया, और मैंने 2 साल फिर इन्हीं के पास स्टेट PCS दिया, और उसमें फाइनली मुझे सक्सेस भी मिली।
फिर उसके बाद मेरा जब एक बैकअप बन गया तब मैं वापस इस जर्नी में आया, और जैसे कहते हैं कि उसमें सक्सेस के बाद इसमें भी मिल गई, तो होपफुली अब इसमें भी सिलेक्शन हो जाए तो Hopefully, we expect you to get selected in the holy PDF of UPSC. With this, we would also like to know what are your hobbies and what role does hobbies play in the civil services examination? So my hobbies were traveling, sketching, as well as diary entry. So these are the things which help you with getting your nerves together. आप जितने nervous होते हो तो you have to have these hobbies to keep your mental health in check. So these hobbies, they are helpful in that. Secondly, these hobbies are also something which if you are having some productive hobbies such as animation or anything, these can also become your backup career as well. Thirdly, if you have these hobbies, this will also help in your interview as well, because hobbies is one section which they are very interested in. So जैसे मुझसे स्केच बनवा लिया, so आपसे कुछ भी कर सकते हैं. तो उन्होंने आपसे पूछा कि एक स्केच बनाइए. हाँ, so they have asked me to make a sketch. So what sketch was it for? So they asked me to sketch one of the members. So I tried to sketch. They gave me only a minute, so एक basic sketch ही बन पाया. So what was the approximation of accuracy, like how accurate value? क्योंकि 1 मिनट था तो बहुत ही एक बेसिक एक स्ट्रक्चर ही बन पाया चलेगा. थोड़ा ज़्यादा होता तो ज़्यादा अच्छा करता, बट हो गया. इट वाज जस्ट टू चेक आई गेस योर कॉन्फिडेंस. तो वो मैंने ठीक ठाक. तो आपके कहने का मतलब है कि हॉबी से भी डिस्क्राइब और डिपिक्ट कर सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आप कितना सच बोल रहे हैं. बेसिकली आपको सच्ची हॉबी लिखनी चाहिए. अगर आप फेक करोगे तो आपको वो पकड़ लेंगे. अब मैं स्केचिंग लिख दूँ और बहुत ख़राब से स्केच बना दूँ तो फिर वो दिख जाता है. तो या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लें जिससे आप नहीं बता पाओगे, तो आप ऑनेस्ट रहो बस. हॉबीज़ के अलावा आपका स्पोर्ट्स में कितना रुचि है? स्पोर्ट्स में मेरी बेसिक रुचि थी, मतलब जनरली देखना, एंड पहले खेलता भी था, बट अभी तो उतना टाइम नहीं मिल पाता. कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलते हैं? जनरली स्प्रिंटिंग एंड एथलेटिक्स में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था. What are some of the key challenges that UPSC has faced in this entire process? Key challenge mostly is mental, so you have to keep your mental act together. Secondly, guidance की कमी हो जाती है. Most of these candidates they get misguided. Thirdly, एक ये इशू होता है कि आपकी कंपनी या फिर इसमें इशू आ जाता है, तो आप पढ़ाई की जगह सारी वो हरकतें करने लगते हो जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प नहीं करती. So these are some of the issues. और आप अक्सर ये लंबी जर्नी रहती है तो फोकस खो देना एंड घबरा जाना, काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं. और अक्सर लोग सोचते हैं कितने साल जा रहे हैं, कोई आउटपुट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि 10 लाख लोग देते हैं, फाइनली 1000 सेलेक्ट होते हैं. सो पीपल ऑलवेज गेट नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड. सो ये सारी चीज़ें रहती हैं इश्यूज़.